शो एंचेंटिंग हिमालयस चल आ रहा है सिर्फ सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Gentlemen, distinguished dignitaries, Mr. A.K. Singh, our Chief Guest, Joint Director Tourism, and Mr. R.K. Singh, DGM Corporate, ONGC. He will be coming here any moment. Respected member of the press, media, and ladies and gentlemen, I, Pranana Machanda, on behalf of Bakhan Creations, welcome you all to this press conference on Enchanting Himalayas, organized by Bakhan Creations for Zee News UP Uttarakhand. To begin with, as we all know, a press conference begins with the ceremony that is called Deep Prajwalan, lighting of the lamp. You gave us the opportunity to say something for this program. So now let's begin the press conference and the admin program goes ahead. Before that, here I would like to add that our producer, Mrs. Madhu Singh, it's just a small gesture. We're just trying to say, sir, thank you so much for giving us time. And with that, I would like to have Anuj also. So we are going to wait. So later we can start the program. First of all, I would like to tell you that why are we all here? The press is here, the program makers are here, and the program anchor is here. As I am the anchor of this program, Enchanting Himalayas, I would like तो मैंने यही कोशिश की कि इस प्रोग्राम के जरिए हम वो कह सके जो हम कहना चाहते हैं और इसके लिए सबसे मैं थोड़ी बहुत कोशिश करूंगी बखान क्रिएशंस के बखान करने की। बखान क्रिएशन दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जो सन 1991 से दूरदर्शन तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए लगातार कार्यक्रमों का निर्माण करता चला आ रहा है और यह क्रम आज भी जारी है। इस प्रोडक्शन हाउस ने कथात्मक और गैर कथात्मक दोनों तरह के कार्यक्रम बनाए हैं और तकनीकी एवं रचनात्मक दृष्टि से इन कार्यक्रमों को खूब सराहा गया है, जिनमें दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों जैसे डीडी उर्दू, डीडी काशी, डीडी भारती सभी शामिल हैं। और अब इस लीग में हमारे साथ जी टीवी उत्तराखंड भी आ चुका है, जिसके लिए आप सभी यहाँ मौजूद हैं। गुवाहाटी दूरदर्शन के लिए भी पिछले साल 2 धारावाहिकों का निर्माण किया गया था, जिसे बेहद पसंद किया गया और यह दोनों धारावाहिक कथात्मक विषयों पर बनाए गए थे। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ये बखान क्रिएशंस सुनने में तो आपको बहुत छोटा शब्द लगेगा, मगर इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण दिग्गजों का हाथ है। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारी प्रोड्यूसर साहिबान है मिसेस मधु सिंह, जिनके लिए सिर्फ एक लाइन बोलूंगी, शी इज वन वुमन आर्मी। शी इज इन हरसेल्फ, I don't know what to say. मैं शायद अभी तक उनको पूरी तरह जान नहीं पाई या ये कहूँगी I've been knowing her. I guess it's been 4-5 years.
Corporate, ONGC. We welcome you all, sir. And now I would like to request Mr. Anand Verma to give away the flowers, a bouquet of flowers to Mr. R.K. Singh. बखान क्रिएशंस की जी मैं बात कर रही थी हमारी प्रोड्यूसर साहिबा की. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू हमारी प्रोड्यूसर साहिबा मधु सिंह बहुत समय से शी इज बीन एसोसिएटेड इन दिस प्रोडक्शन हाउस बिकॉज ये उन्हीं की, जैसे कहते हैं ना, सपना उनका है जो साकार होकर हम सबके सामने है. Because she is a veteran television film producer who has an experience of over 18 years in this medium. She's a diploma holder in acting, production and puppetry and has worked for 5 years with the Shri Ram Center of Performing Arts. जी हाँ, यानी दिल्ली का ये माननीय क्षेत्र है जिसे हम NSD को जानते हैं. इस तरह श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी उसी सम्मान के साथ बोला जाता है. She has traveled extensively and has visited countries like Canada, Japan, Russia, Bulgaria, Greece and Germany. She has attended international seminars and workshops in acting and filmmaking. She is the producer and proprietor of the well-known production company which is Bakhan Creations. Now, here I would like to add on another main important backbone of this Bakhan Creation, जिसके लिए हम सभी मौजूद हैं, Mr. Anil Verma, who is the director of Bakhan Creations, and वो भी पिछले 15 सालों से इसी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. एज अ डायरेक्टर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स को डायरेक्ट किया है, निर्देशन किया है, और जिसमें मैं कह सकती हूँ कुछ प्रोग्राम्स के नाम जरूर लेना चाहूँगी. और उनमें है बेगा ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, समर्पण, मौज कश्मीर, पीस प्रोसेस ऑफ कश्मीर, प्राचीन खेल कराटे, द बेकनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हकीकत बचपन की, हमारे हुनरमंद दस्तकार, सुरभित उत्तराखंड, भारत एक सांस्कृतिक खोज, तसव्वुर हिंद बुलंदी की ओर अनाड़ी बने खिलाड़ी, और अब एन्चांटेड हिमालयस. उम्मीद करते हैं जिस तरीके से उन्होंने हर प्रोग्राम को अपने पूरे निर्देशन से उसके साथ पूरा न्याय किया है, इसके साथ भी जरूर होगा. एंड वी वुड लाइक टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर व्यूअर्स. अब इस प्रोग्राम के बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत कहना चाहूंगी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, बट आई हैव टू बिकॉज दिस इज माय जॉब. सो नाउ आई वुड लाइक टू ऐड एन्चांटेड हिमालयस. इसे हिंदी में कहें तो कहते हैं मनभारी हिमालय. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी हम सब भारतीय हैं, यू नो, वी आर ऑल इंडियंस. भारत का सरताज है हिमालय. ये तो हम जरूर बताते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि भाई हिमालय की इतनी हाइट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए याद कर लो. यू नो, दिस इज व्हाट वी पोर्ट्रे टू आवर चिल्ड्रन. बट मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल के जरिए आपको समझाना चाहूंगी. आज हम भारतीय जरूर हैं और चाहे हम अफोर्ड कर सके या ना कर सके, हम घूमना बहुत पसंद करते हैं. और घूमना ऐसा कि अगर हमारा पासपोर्ट वीजा वगैरह सब हो गया तो शायद हम बैंकॉक या कभी कोई कंट्री जाना पसंद करते हैं, एज आई गेस एवरीबॉडी वुड एग्री. बट हैव वी एवर थॉट कि एज एन इंडियन हैव वी एक्सप्लोर्ड द कंप्लीट इंडिया? कंप्लीट इंडिया को एक्सप्लोर करना शायद हर किसी के बस में है और नहीं भी, क्योंकि कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता. हमारी यही कोशिश है, जो हिमालय जो हमारे देश का सरताज है, जिसे एक शहंशाह के ताज की तरह माना जाता है, उस ताज में बहुत से ऐसे अनमोल रत्न हैं जिन्हें शायद कई लोग जानते हैं, शायद नहीं जानते. I don't want to say much about it, but मैं इतना कहना चाहूंगी कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे एक तरीके से हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम के जरिए we are able to explore and enjoy Himalayas, so that हमारे व्यूअर्स उसको महसूस कर सके, अगर वो नहीं भी जा सकते तो भी, और अगर वो जाना चाहते हैं तो भी, क्योंकि उनको पूरी जानकारी मिल सके. क्योंकि हमारे प्रोग्राम में आप सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि प्रोग्राम एक्चुअली हाँ जी यहाँ से यहाँ गए, जी यहाँ से यहाँ गए. हम चाहेंगे कि आपको जानकारी दे कि आप कैसे जा सकते हैं, whatever. इसके लिए आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा. That's what I can say.
This is simple the effort which we have tried to put on. और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ कह सकी होंगी जो आप लोग सहमत हो सके. So now as I would like to carry on further, here I would like to now मैंने शायद कुछ ज़्यादा ना कहा हो और कुछ कहने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर साहिबा मिसेस मधु सिंह कुछ शब्द के जरिए आपको अपने दिल की बात कह सकें. मिसेस मधु सिंह, कैन वी गिव हर अ राउंड ऑफ बिग अप्लॉज. आज की समारोह में आदरणीय अध्यक्ष मिस्टर ए.के. सिंह जो टूरिज्म से हैं और मिस्टर आर.के. सिंह ओएनजीसी से, उत्तराखंड एंडेवर में सम्मानित पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित सदस्य तथा उपस्थित अतिथिगण, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और नर्वस कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को जितना अपने दिल की बात बता सकूँ वो बताने की कोशिश करूँगी. मैं चाहती थी, एक छोटा सा सपना मेरा था कि मैं यहाँ के लिए कुछ करूँ और शायद वो आज साकार भी हो गया है. मेरी जो पूर्वज है वो भी उत्तराखंड से ही थे और इसमें मैं चाहती थी कि मैं एक प्रोग्राम बनाऊँ जो इस तरह का प्रोग्राम हो जिसको सब लोग देख सकें, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और उन तक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि जो चीज़ें वो लोग वहाँ पहुँच कर देख नहीं सकते वो सिर्फ टीवी के माध्यम से उसको देख सकते. बाकी मेरी एंकर ने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया. मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए. आप लोग सब यहाँ आए, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. टूरिज्म जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी क्योंकि ये टूरिज्म से जुड़े हुए हैं. I can say he is one of the important person for tourism and for this state. And right now, can I request him to say few words for us? Some few words. Can we have a big round of applause for Mr. A.K.? इस सभा में उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, श्री आर.के. सिंह साहब, प्रधान कृषि के डायरेक्टर श्री अनिल वर्मा जी, आपको बहुत ही अपने हृदय के अंतःकरण से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ आने का, आप सबसे मुलाकात करने का एक मौका दिया. इसके लिए मैं अपना हार्दिक धन्यवाद करता हूँ. इसी के साथ मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, खान क्रिएशंस की पूरी टीम को बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये एन्चांटिंग हिमालयाज़ के नाम से ये 26 एपिसोड का कार्यक्रम बनाने का जो बीड़ा उठाया है, ये निसंदेह एक बहुत ही अप्रिशिएबल एक मैं कहूँगा ये एक बात है. उत्तराखंड को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. जो हमारा सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो हमारे हिमालयाज़, और हिमालयाज़ के आकर्षण की वजह से आज देश के पूरी दुनिया से लोग यहाँ खींचे चले आ रहे हैं. उत्तराखंड टूरिज्म और पूरा हमारे प्रदेश सरकार जो है, ये हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड को हम देवभूमि, मतलब आज से नहीं पूरे वर्षों से जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से, और हम इसी को आधार मान करके इस देवभूमि की सेवा में हम एकजुट हैं. और लेकिन अभी अगर आज के हालात में हम देखें, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, तो देवभूमि जो हमारे धार्मिक जो रिलीजियस टूरिज्म यहाँ पर रहा है, उसके साथ साथ एक एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत जबरदस्त यहाँ पे संभावना यहाँ पे बढ़ी, और जिसमें हिमालय, यहाँ के ट्रैक रूट्स, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की घाटियाँ, यहाँ का जो पूरा एक जो लैंडस्केप है, वो एक पूरे
भारतवर्ष के पटल पर ये हमारे सम्मुख आया है और जिसकी वजह से आज उत्तराखंड साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत इसमें यहाँ पर नाम हमारा हो रहा है और मैं अपने सभी इस उद्योग के पर्यटन उद्योग के लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। आपने अभी हाल में सुना होगा कि रिवर राफ्टिंग का डेस्टिनेशन, उत्तराखंड प्रदेश को रिवर राफ्टिंग का डेस्टिनेशन माना है और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग इतना जबरदस्त उसमें विकास हुआ है कि आज यहाँ 107 कंपनीज काम कर रही है तो करीब 276 राफ्ट यहाँ पे ऑपरेट हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो राफ्टिंग के लिए लोग आज अपना पूरा ग्रुप, पूरा एक उत्तराखंड डेस्टिनेशन मान करके सिर्फ इसी प्रोडक्ट को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स में बड़ी भारी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 123 यहाँ जो ट्रैक रूट्स हैं वो हमारे बहुत ही पूरे हिमालय के मध्य है, जो कि 10,000 फीट से ऊंचाई पर भी है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। मैं बखान विशेष को ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जहाँ पर भी पर्यटन की आबाद संपदा बड़ी बड़ी है, ये बड़ा अच्छा आपका एक निर्णय है, मैं बधाई देना चाहूँगा। एन्चांटिंग हिमालय के नाम से आपने 36 एपिसोड्स बनाने का जो निर्णय लिया है, मैं तो ये कहना क्योंकि इसमें मुझे बताया गया कि आप 4 राज्यों को कवर आप करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर 36 एपिसोड अगर पूरे उत्तराखंड में ही बनाया जाए शायद वो भी कम है। जी हाँ, एनीवे क्योंकि उत्तराखंड में इतना हमारा स्कोप है कि शायद 36 एपिसोड अकेले इस राज्य के लिए कम पड़े। तो एनीवे एक अच्छा प्रयास है और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। For giving us support. And here I would like to add our honorable guest, Mr. R.K. Singh, DGM Corporate ONGC, जो ऑलरेडी एक चीज मैं उनके लिए इसी में उनका ना एक तरीके से कल्चरल और हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए बहुत ज्यादा जज्बा है और यही वजह है कि विरासत प्रोग्राम, विरासत जो एक तरीके से ONGC में जिसकी शुरुआत की है मिस्टर सिंह ने, और मैं उसके बारे में क्या कहूँ, क्यों ना हम मिस्टर सिंह को ही रिक्वेस्ट करें सर प्लीज कुछ शब्द जरूर करें, क्योंकि मुझे पता है अक्सर आप अपने Mr. Verma, and my dear friends from media. As a matter of fact, today I am here not as General Secretary, but as DGM HR Corporate Administration ONGC. I was asked by my Delhi office to represent ONGC here at this function, which ONGC as a part of its CSR has decided to support, because we are here and this program is going to highlight the beauties, the pristine beauty of this land. इसलिए हम लोग, मैं ONGC की तरफ से मिसेस सिंह को बधाई देता हूँ और मुझे लगता है कि A.K. सिंह साहब का जो कार्य है सरकार के माध्यम से जो वो कर रहे हैं उसमें मिसेस मोरू जी का यह काम एक दूर जाने वाला इसमें लाएगा, क्योंकि यहाँ की सारी जो नेचुरल इंडाउमेंट्स हैं इस स्टेट के उसको एक्सप्लोर करेंगे दूसरे को, एंड वी आर ऑफ फर्म ओपिनियन दैट इफ the natural and cultural heritage of this land is marketed well, then we can develop it as part of, as on the lines of Switzerland. Swiss Alps को जिस तरह से मार्केट किया गया, वहाँ के कल्चर को मार्केट किया गया, जिस तरह स्कॉटलैंड में अपने कल्चर को वहाँ एडिनोफिस से जो एडिनबर्ग फेस्टिवल होता है उस तरह से मार्केट किया गया। तो मैं बहुत उम्मीद है कि A.K. सिंह साहब और मोरू सिंह का यह काम जो है काफी आगे जाएगा और आप सबों की जानिब से यह काम देश के विदेश तक जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Now, I would like to add here, because जिस तरह से हमने बताया कि बखान क्रिएशंस
एक प्रोडक्शन हाउस है और उसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन हम कुछ टीम मेंबर्स के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। यहाँ की टीम मेंबर्स में आते हैं हमारे चीफ एडिटर मिस्टर अनुज गुप्ता, हमारे मार्केटिंग हेड मिस्टर अमित नाग, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर मनीष राठौर, हमारे PR एंड हॉस्पिटैलिटी कंट्रोलर मिस हिमानी राठौर। तो इसी के साथ अब मैं आगाज कर सकती हूँ हमारे इस प्रोग्राम के एक छोटे से एडी से। So I would like to request you all to have a look on this AD. Yes, here it is. सभी का एंचार्जिंग हिमालयाज़ में स्वागत करती हूँ। यूँ तो हमारा पूरा देश ही खूबसूरती की मिसाल है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ प्रकृति अपना जादू कुछ अलग से ही बिखेर रही है। हवाएं खुशबुओं का भंडार लिए चलती है, बादल कुछ अलग सी ही कहानी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद वहाँ खेल खेल रही हो। जी हाँ, मेरा इशारा है उत्तराखंड की तरफ। हमारे इस अध्याय में आइए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के अलग अलग नजारे। उत्तराखंड जो अपने प्राकृतिक रूप से भी कहीं अधिक सुंदर है। ये प्रदेश अपने से जुड़े पुराने इतिहास के लिए जग में जाना जाता है। यहाँ के लोग भी यहाँ की धरती की तरह सुंदर और सुशील है। पहाड़ी के मध्य बसे लोग ज्यादातर कुमाऊनी और गाड़वाली भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इस जमीन पर खूबसूरती मांग करती है क्योंकि यहाँ देवताओं का निवास रहा है और आज भी ये जमीन पूजनीय है, वंदनीय है। इसे देवभूमि भी कहते हैं, यानी देवताओं की भूमि। उत्तराखंड ने 4 धामों को कई सालों से अपने सीने में जता दी हुई है। सच है कि प्राचीन काल से यहाँ देवताओं ने निवास किया और साथ ही उन्होंने अपने आशीर्वाद से उत्तराखंड की भूमि को हरा भरा लहलहाता हुआ प्रदेश बनाया। कई सालों से आने जाने वाले सैलानियों का मुख्य केंद्र उत्तराखंड ही रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शालीनता मन को लुभाने वाली है। उत्तराखंड की हरी भरी धरती पर कई किस्मों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो यहाँ आने वाले सैलानियों का बरबस मन मोह लेते हैं। उनके वजह यही है यहाँ आकर आप सुख की अनुभूति कर सकें। इतनी धार्मिकता, इतना पुराना इतिहास, वाकई ये शहर खूबसूरती और संस्कृति से मालामाल है। इतना सब जानने के बाद अब तो आप भी उत्सुक हो रहे होंगे यहाँ जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। तो आइए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए। उत्तराखंड में बसा है, यहाँ पहुंचने के कई साधन हैं जो सुबह 6:05 तक काठगोदाम पहुंच जाती है। काठगोदाम से नैनीताल का सफर लगभग 35 किलोमीटर का है। 503
3-5 उत्तराखंड समकर 35 मिनट पर काठगोदाम स्टेशन पहुंच जाती है। गोदाम पहुंचती है सुबह 9:30 पर। हाईवे के रास्ते अगर आप आती हैं, दिल्ली से नैनीताल का सफर 310 इतने खूबसूरत दृश्यों के बाद आपको भी उत्तराखंड से हम आपको लिए जा रहे हैं हिमालय का दिल दिखाने, उसकी धड़कनें सुनाने। कुछ सुना क्या? जी हाँ, मैं बात नहीं खुद ही कहना है। तो आइए हम भी जरा कुछ देखें। मेरा मतलब है गर्मियों के दिनों में नैनीताल की सैर पर चलना बहुत ही दिलचस्प और बढ़िया विचार है। शहर की भाग दौड़ और गर्मी को दूर कर सकते हैं। जल्दी है पक्षियों की चहचहाहट से पूरा नैनीताल मग्न रहता है। यहाँ आपको परेशान करने को लगते सितंबर के महीने में जब बादल उमड़ उमड़ के यहाँ पानी बरसाते हैं। दुनिया भर में मशहूर है, इसे देवभूमि कहा गया है। यहाँ के लोगों की मतानुसार यहाँ धरती पर देवों का निवास था, इसलिए ये बहुत ही पावन और पवित्र था। लेकिन सभी में बात अटैच है और सभी कमरे खास तौर पर देखने योग्य हैं। लग्जरी कमरों की तो बात कुछ और ही है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहली नजर पड़ती है शहर के बीचों बीच मौजूद नैनीताल का नाम भी यहाँ इसी वजह से पड़ा है, क्योंकि ये शहर है जहाँ जरूर करें। Thank you so much. It's just a small effort, क्योंकि मैं खुद एक मतलब मैंने 96 में काम करना शुरू किया था और मैं अब तक डीडी मेट्रो, PTV उर्दू, PTC पंजाबी, PTC न्यूज, न्यूज 24, हमारे ATN हुआ करता था चैनल और WhatsApp भी आया करता था। मैंने शायद ही कोई चैनल छोड़ा। कुदरती बॉम्बे जाने का मुझे कभी मौका नहीं मिला और ना मुझे जरूरत पड़ी। मैं आज भी दिल्ली को बहुत काम की कमी नहीं है, काम करने वाला चाहिए। So I believe in that work and still I am there. And here and now I would like to just say है आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया कि कीमती वक्त आपने निकाला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर कोई अपने काम में। And here I would just like to request you कि अगर हमने आपके दिल देखिएगा और अपने कलम के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाइएगा कि उन्हें ये जरूर देखना चाहिए, ताकि अगर हमारी कोई कमी है तो हमें पता चल सके और हम उसे और अच्छे से करें। बिकॉज आई जस्ट बिलीव कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ काम बोलता है। वर्क स्पीक्स, नथिंग एल्स। So that's what this is what I could say. And now I can request our respected guest reporters, because आप लोगों ने बहुत कीमती वक्त निकाला है। You are open for the questions because it's a press conference और हमारे producers हमारे साथ हैं, we have director over here, so anything you can ask if you feel like, if it is there something to ask. चाहे तो अपने किसी भी सवाल को हमारे सामने रख सकते हैं जिसको आप लगे कि हमें जवाब देना चाहिए। फंडिंग फ्रॉम क्योंकि मैं खुद भी उत्तराखंड से मैं नहीं चाहती हूँ, तो बट मुझे और जो दूसरी स्पॉन्सर कंपनी से अच्छी कंपनी देने की सपोर्ट करते हैं। और वैसे बाकी मतलब और चीज़ों में टूरिज्म से हमें पूरी हेल्प मिलती है। जहाँ हम जाते हैं शूटिंग के लिए वो लोग हमारा सहयोग करते हैं और हर चीज़ में हम लोग का पूरा उनका प्रोत्साहन भी है और उनकी हेल्प भी है। तो उसके लिए आपको पैसे से उसको नहीं तोड़ा जाएगा। You please have the lunch because the lunch is ready, and thank you for coming. आप ना 22 मिनट्स लेकिन शॉर्टकट कर सजेशन प्रॉब्लम ये थी इसको हम तक देने की बात
आपके एपिसोड से आप नेचर को हाईलाइट 5 मिनट में आपको कवर करें। सर आप ये देखिए बिजनेस क्या है सर, बिजनेस से वो चीज़ें आप बता सकते हैं। सर वही तो सर ये जो एपिसोड है ना मेरे जो मेघालय का एपिसोड आप फर्स्ट एपिसोड देख रहे हैं वो पूरा तैयार है। ये हम लोग दिखा रहे हैं और ये पूरा उनके लिए विचार है, इसलिए मुझे एपिसोड दिखाना पड़ा सारा। अच्छा प्रयास है। सब लोग का सहयोग चाहिए और आप लोग सजेशन चाहिए आप मुझे जगह बताइए आप सबसे बड़ी बात यह है कि नैनीताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर नया देवी का मंदिर, चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारा चारों बराबर में, वो चीज़ आपको और दूसरा सनराइज सनसेट हिमालयाज में सबसे फॉग टाइम्स में अभी क्योंकि बारिशों का मौसम है जो है चेंज करना वेरी गर्मी में ये हमें दिक्कत आई थी क्योंकि रेंजेस जितनी भी है वो आई फॉग की वजह से दिखाई नहीं दे रही और उसमें स्मोकी उसके अलावा रूरल टूरिज्म के बारे में उसको तो हम लोग और भी कवर दिखाया गया है आइडियाज वो आप हमें दे इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह मुझे हर जगह हमारा देश तो इतना विशाल है ना कि आप क्या क्या दिखाएंगे सर, नीचे दूर से लेकर ऊपर तक क्या क्या दिखाएंगे सर, इतना कुछ दिखाओगे। हाँ सर उसका हम लोग बना रहे हैं उसकी घड़ी आप इसमें लोग हाँ सर 52 गढ़ थे रिसर्च कर रहे हैं अभी निकाल रहे हैं उसका है उसमें है वेजिटेरियन में चला है सर आप मिल जाएगा वेजिटेरियन यहाँ पे चलो उससे वहाँ पर बात तो मैंने तो ट्राई किया फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं रहती है, प्रॉब्लम नहीं सब चीज़ें फॉलो करें। गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाते हैं अगर दूसरे लोग कहेंगे कि आपने नहीं सर हम प्रोग्राम कर रहे हैं आप समझे नहीं, इसके लिए जैसे पोस्ट आंसर्स जो है उसमें तो टूरिज्म यूट्यूब वाले ये क्या सकता है एडवर्टाइजमेंट तो जा सकता है ना, एडवर्टाइजमेंट तो जा सकता है उसी के लिए तो भेजा सर वो तो आपको बताया इसका मतलब है कि उसके लिए अलग से आपका नहीं वो तो मैंने एक ऐड सर आपने प्रोमोस देखा प्रोमोस अरे प्रोमोस भी देखा अच्छा सर हाँ शुरू में चलाए ना उनको दिखाया अनु प्रोमोस दिखा दो प्लीज बहुत अच्छा लगा आपका सर मेघालय का थोड़ा सा सर जब तक उनकी सब 10 विशेष चाहिए गुड विशेष थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर हो जाए सर इसलिए पैसा नाम कोई आगे प्राइवेट पहली बार आपने बहुत डिपार्टमेंट आएगा तो बाहर जाते हैं इंग्लिश में भी सर मैं कर रही हूँ ना मैं जो केस वो है हाँ सर वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं उससे आपसे आइडिया लेंगे हाँ मेघालय का भी दिखा वो हमारा
सदियों से चला चला है। लेकिन अभी जो है कल्चर में बहुत आगे बहुत आगे कल्चर की पूरे दुनिया में जो है सिर्फ केवल योगा राइट आई उत्तर प्रदेश देखिए ट्रैवल बेस्ड शो एन्चेंटिंग हिमालयस जल्द आ रहा है सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बोलने के लिए इंस्पिरेशन ये तो पहले ये जरूरी दिखाना पड़ता है, ये जरूर दिखाना पड़ता है। अपोजिट रास्ते हो नहीं मैं तो ऐसे ही लोकल हूँ। तो मैं तो अभी उसमें बुलाया ना नहीं नहीं ये नहीं का ये तो मैडम बोलेंगे तुम तो किसने ले जाओ अजीत हाँ तुम तो अपने स्टाफ पे आप जानते हो ना प्रदीप को? यार जानेंगे कैसे नहीं यार, सारा दिन तो 4 साल से मैं पहली बार ही आ रहे हैं। मैं तो हर चीज़ तो मुझे तुम्हारे साथ दिक्कत सारी होती है। भेज रहा हूँ खाली क्या हो मंगा दो, जो खाली लोग मंगा लो, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं। आइसक्रीम भी मंगा दो ना, वनीला आइसक्रीम भी ठंडा करो। सर आपको मेघालय वाला इसमें नंबर 1 हुआ है थोड़ा बहुत उसी पैटर्न सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट कुछ राज है जो से चीज बोलो ना, पनीर मुझे मिला लगा यहाँ पे नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैंने ये समझा है कि मैंने थोड़ी मुस्कुराहट आएगा।
पीछे पड़ा हुआ है ऐसे खड़े नहीं खड़े हो गए यहाँ पे डालना कुर्सी पीछे हो गई स्टैंड हो गया स्टैंड लगा स्टैंड पैक कर दिया लगा स्टैंड हाँ कब तक कर देगा भाई कब तक कर देंगे 2-4 जने तो हैं कब तक कर देंगे Excuse me. Excuse me. Yes. Ready? Thank you. Thank you so much. 1, 2, and 3. We have to finish and we have to start for that. Always victory. What is this? सुनने को मिलता है प्रेस से तभी डर लगता है मैं खुद न्यूज़ 24 में एक साथ प्रोड्यूसर आएगा की तरह जॉब कर चुकी हूँ मैं करती थी अपने आप को बताने भैया प्रेस से तभी डर है अरे ऐसे कुछ नहीं सर प्रतिदिन सुनना चाहिए तभी आपको पता चलता है यही समय के ऐसे होते हैं जहाँ रहते ऐसा नहीं होता है इसका ये होता है दो तरीके से ना अरे भैया